Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Fast Boys Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 9, we are going through unit number 4, Pakistan and National Pride. We have already covered reading comprehension and reading comprehension exercises. Today we will start language practice section of unit number 4. In language practice, in this unit we have two topics to cover. Number 1, active or passive voice, which is written on the board, and number 2 is prefixes, which I will explain you later after this topic. Starting from active or passive voice, I would like to ask you what passive voice is. Do you people have any idea about either active voice or passive voice? Yes, tell me, my dear students. Okay, some of you have answered, but it's not that much clear. So let me clear this concept of active or passive voice. Active or passive voice are replica to each other. They are the substitute sentences with the same logical meaning but different word order. What do I mean by saying this? I will demonstrate you on the board. As you can see on the board, we take class. हम class लेते हैं. Class is taken by us. Class ली जाती है हमारे जरिए. So these two sentences are active and passive voice of the same logical sentence. The action of taking class is taking place here in these two sentences, but the order is different, the logical meaning is same. I'll tell you how the order is different. As you see here, in the first sentence, we take class. We is the doer of action, take is the action, and class is the receiver. What do we mean by doer, action or receiver? I'll shortly tell you. Doer of action is called subject, action is called verb, and receiver of action is called object. So here you can see the doer, we, is the subject here, action take is the verb here, and class receiver is the object here. Subject, verb and object. So in simple words we call it doer, action and receiver. Now you will see in the passive voice of the same sentence, the word order is changing. The receiver is coming at the beginning, and then we are using auxiliary verb. Then we are using action, take in its past participle form. Then we are using preposition by, and then doer is coming in the end. So you see the word order, it was previously doer, action and receiver, but now receiver, auxiliary verb, action, preposition, by and doer. So this is a change in word order, but the logical meanings remain same. I'll teach you how to convert an active sentence into passive sentence. Here I have written these 5 steps. Whenever you want to convert an active sentence into passive sentence, you have to go through these 5 steps. I'll tell you what these 5 steps are one by one. Number 1 is parsing. Number 2, cross technique. Number 3, use of auxiliary verb. Number 4, use of past participle verb. And number 5, use of by.
Now I will explain you all these 5 steps. You need to understand this with interest and attention. अगर आप लोगों को एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये सीखना है, तो आपको ये 5 स्टेप्स बहुत गौर से समझने होंगे. इन्हीं 5 स्टेप्स की मदद से हम हर एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं. Step number 1, parsing. What does parsing mean? The word parsing in English means to identify doer, action, and the receiver in a sentence. These are 3 mandatory elements of sentence, essential elements of sentence. Without these 3, subject, verb and object, in simple words, as I told you earlier, that doer is the subject, action is the verb and receiver is the object. But instead of calling it subject, verb and object, I am calling it doer, action and receiver for a reason. कोई वजह है कि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह वर्ड डूअर इस्तेमाल कर रहा हूँ और वर्ब की जगह एक्शन और ऑब्जेक्ट की जगह वर्ड रिसीवर इस्तेमाल कर रहा हूँ. I'll tell you in the end why I am doing so. So let's stick to these 3 words: doer, action and receiver. When you identify these 3 elements of sentence in a sentence, then you can go for its conversion from active voice into passive voice. This is a simple sentence written on the board. There may be a complicated, complex or a compound sentence written on the board. And out of that you will have to identify doer, action and receiver. I will exemplify you here on the board just in a moment. So here you can see I have added some more words in the first sentence. We take class in the morning. It can be a longer sentence than this. For instance, we take class in the morning at 5 o'clock, at 8 o'clock. It can be further longer than this. We take class in the morning at 8 o'clock in our school. It can be further longer. We take class in the morning at 8 o'clock in our school with my friends. So the longer the sentence is, the more complicated it is. What you need to understand, आपको क्या समझना है जुमले में कि 3 elements of sentence आपको identify करने हैं. No matter how longer the sentence is, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुमला कितना बड़ा है, चाहे जुमला इतना बड़ा हो कि इस पूरे बोर्ड पर ये सेंटेंस आ जाए, लेकिन किसी भी जुमले में मैंडेटरी एलिमेंट्स 3 ही होते हैं: डूअर, एक्शन एंड रिसीवर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बाकी जितने भी अल्फाज उस जुमले में इस्तेमाल होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से. सो यहां पर अगर इसी जुमले की मिसाल लें, वी टेक क्लास इन द मॉर्निंग, तो पता ये चला कि वी डूअर, टेक एक्शन, क्लास रिसीवर. इन द मॉर्निंग इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, इजाफी इंफॉर्मेशन गिवन है सेंटेंस में. इट डजंट मेक एनी सेंस. Whatever information is given to you apart from doer, action and receiver, you are only concerned with these 3 elements of sentence. आपको सिर्फ ये 3 elements of sentence को आइडेंटिफाई करना है. इन 3 को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसी से पैसिव का सेंटेंस बनेगा. बाकी जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो पैसिव के जुमले में भी एज इट इज आ जाएगी. आई विल एग्जाम्पलीफाई यू. ओके, नाउ यू कैन सी I have written in the morning, additional information from here to here. So whatever additional information given over here will as it is come here too. We take class in the morning, class is taken by us in the morning. तो सबसे पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि जुमला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस देखने. 3 एलिमेंट से आपको काम है, वो है डूअर, एक्शन और रिसीवर. ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन एज इट इज आ जाएगी. तो वी टेक क्लास को हमने कन्वर्ट किया, क्लास इज टेकन बाय अस, और मैं आपको बता रहा था 5 स्टेप्स. नंबर 1 स्टेप पे हम बात कर रहे थे पार्सिंग की. तो मैंने आपको बताया कि पार्सिंग मींस टू आइडेंटिफाई डूअर, एक्शन एंड रिसीवर इन अ सेंटेंस. अब चाहे कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस गिवन हो, आपको सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहला काम आपका, सबसे पहला स्टेप ये है.
किसी भी एक्टिव के जुमले को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये 5 स्टेप्स आपको लाजमी लेने होंगे, 5 इक़दाम करने होंगे, और ये पांचों के पांच जो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, इसी सीक्वेंस से आपको ये स्टेप्स लेने हैं और आपका एक्टिव का सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट होता चला जाएगा। मसलन आपने सबसे पहला काम किया, आपने आइडेंटिफाई किया वी टेक क्लास इन द मॉर्निंग में वी डूअर है, टेक एक्शन है, क्लास रिसीवर है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इज क्रॉस टेक्निक। व्हाट डू वी मीन बाय क्रॉस टेक्निक? यू सी doer V is at the beginning over here in this sentence, but it is coming in the end. ये आखिर में आ रहा है पैसिव के जुमले में doer देखें, और वो भी कैसे आ रहा है? अस की सूरत में आ रहा है। तो आपने V को क्रॉस पोजीशन पर लगा दिया और जो क्लास रिसीवर थी उसको उसकी क्रॉस पोजीशन पर लगा दिया at the beginning. So this is called cross technique. You crossed the positions of doer and receiver in passive voice. So this is the second step. Now let's move on to the third step, the use of auxiliary verb. ये देखिए इस सेंटेंस we take class, हम क्लास लेते हैं। This sentence belongs to present simple. ये present simple का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल के ऑक्सिलरी वर्ब तो डू और डज होते हैं, यही हमने सीखा है। लेकिन हम यहां पैसिव वॉइस में डू और डज का तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, हम तो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर रहे इज। तो पता ये चला कि अगर मैंने यहां पर थर्ड स्टेप, एहतमाम से थर्ड स्टेप यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है, तो इसका कोई रीजन है। और रीजन ये है माय ब्रदर्स कि एक्टिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब डिफरेंट होते हैं, पैसिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब डिफरेंट होते हैं। एंड आई विल टेल यू कि पैसिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। आई विल मेक अ चार्ट ऑन द बोर्ड इन अ व्हाइल एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू दैट चार्ट। तो अभी आपने समझ लें कि बस प्रेजेंट सिंपल में जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है पैसिव वॉइस में, वो इज है, डू डज एक्टिव में, लेकिन पैसिव में इज एम आर आता है। तो क्लास के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? यस, वेरी करेक्ट। क्लास के साथ हम एम इस्तेमाल नहीं करते, आर नहीं कर सकते, बल्कि क्लास के साथ इज इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि ये इज कैसे आया। ये इज पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल का ऑक्सिलरी वर्ब है। प्रेजेंट सिंपल के वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज होते हैं, लेकिन पैसिव में डू डज नहीं होते, इज एम आर होते हैं। तो इज एम आर में से क्लास के साथ हमने इज का इस्तेमाल किया एज ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का जुमला है ना। अब जब हम ये पैसिव वॉइस से जुमला बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसके ऊपर उसूल, रूल्स, प्रिंसिपल्स भी पैसिव वॉइस के अप्लाई होंगे, एक्टिव वॉइस के अप्लाई नहीं होंगे। वेरी गुड। So now step number 4, use of past participle verb. Verb क्या है भाई यहाँ पर? ये है verb, take action। एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी कि पैसिव वॉइस के हर जुमले में मेन वर्ब की, एक्शन की हमेशा 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 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। देखिए ये पाकिस्तान में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, वरना इसके स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज हैं इन फॉर्म्स की, और वो क्या है? जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं उसकी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म की प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है वो है पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो जब भी मैं बात करूंगा पास्ट पार्टिसिपल की, तो आप समझ जाएंगे पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वही थर्ड फॉर्म जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। एक्सक्यूज मी। तो फोर्थ स्टेप है कि हम हमेशा हमेशा
वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो टेक की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टेकन, ठीक है। और स्टेप नंबर 5 यूज ऑफ बाय बिफोर द डूअर, डूअर से पहले। पैसिव वॉइस के जुमले में डूअर से पहले प्रेपोजिशन बाय लगेगा हर सूरत में। अब आपने देख लिया कि ये 5 स्टेप्स आपके पूरे हो गए। आपने पासिंग की, डूअर को, एक्शन को और रिसीवर को पहचाना जुमले में, फिर आपने क्रॉस टेक्निक की यानी कि इनकी पोजीशंस क्रॉस कर दी, डूअर को एंड में ले आए और जब डूअर एंड में आएगा तो वी जब एंड में आएगा तो वो वी के बाय वी नहीं होगा, बाय अस होगा। अगर यहाँ पर डूअर आई लिखा हुआ होता तो जब ये क्रॉस पोजीशन पर आता तो मी हो जाता। यू अगर होता लिखा हुआ तो यू का तो ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। अगर दे लिखा हुआ होता तो दे यहां से जब क्रॉस पोजीशन पर आता तो जैम हो जाता। अगर ही लिखा हुआ होता तो यहां पर आकर वो क्रॉस पोजीशन पर हिम हो जाता। शी लिखा हुआ होता तो यहां क्रॉस पोजीशन पर आकर हर हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको डूअर की क्रॉस पोजीशनिंग करनी होगी तो आप उसको चेंज करेंगे। आई को मी, वी को अस, यू को यू, दे को देम, ही को हिम, शी को हर। ये आसान सा उसूल को इतना रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आपको मुश्किल समझने में, ठीक है। तो आपने क्रॉस पोजीशन की, वी को अस के तौर पे यानी है और क्लास को आखिरी में से उठाकर बिगिनिंग में ले आए, शुरू में ले आए, ठीक है। जब क्लास शुरू में आ गई तो उसका सी कैपिटल हो गया माइंड इट, ठीक है माय डियर ब्रदर्स। तो ये हो गई क्रॉस टेक्निक, सेकंड स्टेप आपने कर लिया। अब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। फिर आप इस्तेमाल करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। आगे देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। वी टेक क्लास, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो पैसिव का ऑक्सिलरी वर्ब इज लगेगा। पैसिव में प्रेजेंट सिंपल का ऑक्सिलरी वर्ब इज एमआर होते हैं तो यहां पे इज लगा दिया। अगर यहां पर सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस गिवन होता, वी आर टेकिंग क्लास, तो यहां पर फिर इज नहीं लगता बल्कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब लगता। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। I will give you a complete chart of it on the board just in a short while. Okay? तो थर्ड स्टेप आपने कर लिया, ऑक्सिलरी वर्ब भी लगा दिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप आपने टेक की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दी, टेकन। फिफ्थ स्टेप बाय लगा दिया। ये अस तो आप पहले ही लगा चुके थे जब क्रॉस टेक्निक की थी, तो आपने उस अस से पहले बाय लगा दिया। अब इस उसूल के तहत आप हर प्रेजेंट सिंपल के, अब तक तो आपने प्रेजेंट सिंपल के ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े ना। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल में इज, एम, आर, ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो अब आप प्रेजेंट सिंपल के हर जुमले को पैसिव में ट्रांसलेट, ट्रांसफर, कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बोर्ड पर 4-5 सेंटेंसेस दे रहा हूं प्रेजेंट सिंपल के। आप जरा ट्राई करिए अपनी रफ कॉपीज में कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। Here I have written 3 sentences on the board as practice sentences. You eat ice cream. I call you. They play cricket. आपको मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको पार्सिंग करनी होगी और चूंकि ये सेंटेंसेस कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं है, हर जुमले में मैंने दिए ही 3-3 अल्फाज हैं, तो पार्सिंग का काम तो आपका रहा ही नहीं। अब आपको पता चल गया कि यहां पर यू डूअर है, ईट एक्शन है, आइसक्रीम रिसीवर है। यहां पता चल गया कि आई डूअर है, कॉल एक्शन है, यू रिसीवर है। यहां पता चल गया कि दे डूअर है, प्ले एक्शन है, क्रिकेट रिसीवर है। तो हर जुमले में आपको पार्सिंग तो ऑलरेडी गिवन है, पता है आपको। आपको बाकी क्या करना है? क्रॉस टेक्निक करनी है। आपने क्या करना है भाई कि ये यू को क्रॉस पोजीशन पर ले आना है, आखिर में आइसक्रीम को उठाकर सबसे शुरू में ले आना है। ये काम भी कर लेंगे आप। उसके बाद क्या करना है भाई? ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट सिंपल के तीनों जुमले प्रेजेंट सिंपल के हैं। प्रेजेंट सिंपल में इज, एम, आर का इस्तेमाल होता है। तो आप देखेंगे कि जब ये आइसक्रीम क्रॉस पोजीशन पे शुरू में आ गई तो आइसक्रीम के साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आएगा? इज या एम या आर? वेरी गुड। नो 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 नो,
आई हर्ड समबडी सेड एम आएगा। बेटे आइसक्रीम के साथ एम नहीं आता, वी यूज एम विद आई। एम तो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, आइसक्रीम के साथ इस्तेमाल नहीं होता। आइसक्रीम के साथ तो चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ इज आएगा। तो आइसक्रीम के साथ इज आ गया। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, पार्सिंग तो ऑलरेडी हुई भी है, क्रॉस टेक्निक की, यू को आखिर में ले गए, यहां ले आए, और यू जब आखिर में जाएगा तो यू ही रहेगा, अभी हमने डिस्कस किया। आइसक्रीम को बिगिनिंग में ले आए, शुरू में ले आए, स्टार्टिंग में ले आए। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल। इस एमआर में से क्या इस्तेमाल होगा, आइसक्रीम इज, वेरी गुड। उसके बाद है यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, ईज की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो क्या है भाई, ईटन। यस, ईटन। तो क्या जुमला हो गया, आइसक्रीम शुरू में आ गया, आइसक्रीम के बाद इज लग गया, आइसक्रीम इज, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई ईटन। और फिफ्थ स्टेप क्या है, यूज ऑफ बाय। बाय का इस्तेमाल है यू से पहले। ठीक है, तो जुमला क्या बन गया, आइसक्रीम इज ईटन बाय यू। एक्सीलेंट। इसी तरह ये बकिया दो सेंटेंसेस भी कन्वर्ट कर लें प्रेजेंट सिंपल में। इतना आप यहां आज समझ लें। इतना अगर आपको समझ में आ गया है कि ये 5 स्टेप्स और प्रेजेंट सिंपल के इज़मार ऑक्सिलरी वर्ब, तो इतना काफी है। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। योर होम असाइनमेंट इज to learn these 5 steps. I am writing on the board. Here you are. This is your home assignment. Memorize 5 steps. ये 5 steps इसी सीक्वेंस से आपको अपने माइंड में रखने हैं। हर पैसेज का सेंटेंस बनाते हुए ये 5 steps इसी सीक्वेंस से होंगे। We will discuss about some more things. I will explain you the chart of auxiliary verb and passive voice. एक्टिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, और किस टेंस में एक्टिव के ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और पैसिव के क्या है। वी विल मेक अ चार्ट ऑन द बोर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।